I think it would be great to discuss your life before Nalanda Academy. So if you can talk a little bit about that. And I was also reading an old interview of yours where I read that you also created a series of documentaries in your life, a series Yeah, of documentary at one point of time, named The Death of Merit. That means that right. you have been experimenting with a lot of things before you decided to devote yourself to Right. Nalanda. So before Nalanda, I spent some 13 years in Delhi. I studied in JNU for some time for my post graduation, and that was the time where I actually started, working in the movement. And my first venture was actually to start a magazine. So Hmm. it's a print magazine. It was known as Insight, Insight Young Voices. So the whole idea behind that was, during my own student life, I have seen that none of us were able to articulate about our problems as a Dalit student, right? Hmm. So, and there was no literature. So when I came to JNU, I started, trying to look for out for the literature, which was, available on caste. But none of the literature, none of the articles, none of the scholars actually talked about experiences of Dalit students, especially in higher education. When I was running this magazine, then only I got this, insight about how pervasive caste discrimination actually is in higher education, especially in higher education, because till then, even I used to believe that caste exists only in rural areas. Hmm. Caste exists only in the backwaters of UP and Bihar. Caste is Mayawati, caste is Lalu Yadav, caste is caste is reservation, right? Hmm. But but when I entered engineering, when I came to JNU, and then when I started traveling to all these premier education, then I understood that how caste is structurally embedded in these institutions. The way the entrance exam is designed, the way your syllabus is designed, the way your entry point itself has been created in such a way that even if you enter, if you are able to take admission, you will always feel that you are unwelcome there. You do not belong there. You don't deserve to be there. So these are these are not coincidence. These are very, very well designed system that has been working post independence, and especially in the field of higher education, in the name of merit, in the name of efficiency and merit. So that I could experience learning from other students. So that led to what the documentary that we were talking about earlier, because I came across, while going to the different universities, in every, almost in all premier universities, one thing was common, that there were a number of Dalit students who have committed suicide. Whether Hmm. I went to IISc Bangalore, whether I went to IIT Delhi, Kanpur, IIT Roorkee, or Pondicherry University, everywhere it was common that there is some or the other Dalit student has recently committed suicide. And suicide is a very difficult, complicated topic, right? And it's very difficult to prove also that something, something such as caste has existed. So once when I started talking to the students and their family members, then these stories started emerging. So we thought that why don't we document it? Because see, the thing is that we were from the day one, we were very clear that we are not going to be able to prove it. Nobody is going to, upper caste intelligentsia, upper caste academia will not believe that this has happened because of caste. But at least these documentaries will make our community little aware about what is happening with their kids. And in that way, probably we might able to build something, some platform, some kind of support system. So the whole idea was this of behind this documentary was this to make our community aware about this, that this is what is happening. And second was to challenge this whole concept of merit, Hmm. because we named it the death of merit, right? So when these students commit suicide, you know these were not your Dalit students who come through reservation. Almost all of them were toppers from their schools and colleges. So these were the three major things Hmm. I did before Nalanda. Hmm. One was to run a magazine, then we made documentaries, and the third
was to run a telephone helpline. The whole idea was that our students should not feel that they are all alone in this. Mm. Somebody is there, some group is there to listen to them at least. Because from the day one, we were very clear that we are not going to bring much change because we are a very small group and we don't have that kind of political patronage. So that to we were very clear कि justice तो नहीं लेकर आएंगे, justice तो हम नहीं दिला पाएंगे. और जब भी हम whenever we used to go and visit students family, the first thing I used to tell is that, see, I have just come as a community member. I have come to you as a part of the community. I am not here to give you, bring justice to your child. So that is impossible. So, so the whole idea was कि community में, say within community, something has to emerge because that will give the confidence to the students. So I ran telephone helpline, but again it was very depressing. Mm. Every day we used to get hundreds of calls, about discrimination and about atrocities, about students getting failed, about students not getting scholarships. So, after a point of time, we all got very depressed. We were Mm. four of us who were working. We got very, very depressed because we fought many court cases also, but in none of the cases we could win, except one, which we won against IIT Delhi. Mm. So it was, carry on day after day, listening to, these stories of discrimination and, complaints and harassment and suicides. It became very difficult for us emotionally. And that was the time when I decided to give up. Okay, I'm not going to do this whole my life. I want to do something concrete on the ground, and I want to see results. When I work whole day, at the end of the day, I want to see the result of my labor, right? Mm. I want to feel happy. I want to feel that I am able to contribute something. So that is how this whole idea of Nalanda Academy came, that we will create our own space. We will train our own students away from all upper caste influences, and then see how they fare up. How they are able to perform. Once we are able to train them, at least we are able to give them some sense of community, right? And then let's see how our students fare in these spaces. So this is how Nalanda was born. And you said very interesting thing about the idea of merit, and I was also listening to one of your interview where you explained what is the meaning of merit for you. तो अगर आपको एक बार इस चीज पे बड़ी बातें होती हैं, जैसे पूरा कि मेरिट चला जाता है रिजर्वेशन से, या फिर लोअर कास्ट के स्टूडेंट आ जाते हैं तो मेरिट का क्या होगा, ये क्या होगा, तो ये देश का सबसे एक प्राइम टॉपिक है मेरिट जी वाला. जी तो आप जी मेरिट जी को किस तरह से देखते हैं? मेरिट की परिभाषा क्या हो सकती मैं है इस देश मैं में? मैं हमेशा एक क्वेश्चन पूछता हूँ जब भी मैं वर्कशॉप लेता हूँ, मीटिंग लेता हूँ. और मैं आपसे और आपके जो सुनने वाले हैं उनसे भी एक ही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप जब बीमार पड़ते हैं तो आप डॉक्टर चुनते हैं कि हमको इस डॉक्टर के पास जाना है, इस हॉस्पिटल है ना, तो आप कैसे चुनते हैं? क्या आप उसका सर्टिफिकेट मांगते हैं? क्या आप उसका एंट्रेंस एग्जाम में मार्क्स मांगते हैं? क्या आप उसका क्या रैंक आई थी ये मांगते हैं? ठीक है, ये सब कुछ नहीं मांगते. आप उसका गुडविल देखते हैं कि उसका फील्ड में, उसके बारे में लोग क्या बोलते हैं, यानी कि उसका फील्ड में क्या तजुर्बा है, उसका अपने फील्ड में क्या परफॉर्मेंस है. एंड दैट इज द रियल मेरिट इन एवरी फील्ड, वेदर इट इज लॉ, वेदर इट इज मेडिसिन, कोई भी फील्ड में बेसिक चीज होता है कि आपका एप्टीट्यूड इस फील्ड में कैसा है. दैट इज द रियल मेरिट. और दूसरा, ये जो कंपटीशन होते हैं, जितने भी कंपटीशन है, बेसिकली ये एक प्रकार का ये जितने भी एंट्रेंस टेस्ट होते हैं बेसिकली इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स कम है, लोग ज्यादा है. ये आपका इंटेलिजेंस टेस्ट करने के लिए नहीं है कि हम सबसे ज्यादा 100 सबसे इंटेलिजेंट लोगों को हम हम्म. आईआईटी में इंजीनियर बना रहे हैं. वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपके पास सिर्फ 100 सीट है और भरने वाले 10,000 लोग. तो अगर एक स्टूडेंट ऐसा है जिसका 100 पे सिलेक्शन होता है और 99 वाले का सिलेक्शन नहीं होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक नंबर कम है तो वो
10% बेवकूफ है या वो मेरिटोरियस नहीं है। तो दूसरी चीज ये है कि एंट्रेंस एग्जाम्स आर बेसिकली योर स्क्रीनिंग टेस्ट, कि आपको स्क्रीन का आपको लेना नहीं है, आपको निकालना है लोग। हम्म। All these entrance exams are not designed to choose, it is to exclude people, कि इससे नीचे। तो और तीसरा पॉइंट आता है आपका कि आपके जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, खासतौर पे जितने भी प्रीमियर एजुकेशनल कॉलेजेस हैं, हम्म। आप मुझे बताइए कि जिसमें जितने भी बच्चे हैं वहां पे जो निकालते हैं एग्जाम, उनका लिस्ट हम निकालते हैं, एक सर्वे करते हैं कि जितने भी टॉप 100 में आए हैं नीट में या JEE में या क्लैट में या टॉप 1000 में आए हैं, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड, उनका सोशल बैकग्राउंड कैसा है। तो आप देखेंगे कि ये सारे एग्जाम जो हैं वो अपने आप में बहुत एलिटिस्ट हैं, है ना। तो कास्ट तो बाद में है, ये पहला क्लास क्लास को ही करता है। अब आप हम्म। IIM का एग्जाम ले लो, आप IAS का ले लो, आपको लाखों रुपए चाहिए, तब आप वो एग्जाम निकालने के लायक रहते हैं, है ना। आपको उसका फॉर्म भरने से लेके उसका मटेरियल, तो बेसिकली दीज आर वेरी एलिटिस्ट एग्जाम, और इसीलिए EWS की जरूरत पड़ती है इनको। अब आप सोचिए EWS, ये जो रिजर्वेशन उन्होंने दिया है, वो परफेक्ट एग्जाम्पल है कि अगर अपर कास्ट भी पुअर है तो वो भी IIM नहीं जा पाता है। तो ये जो मेरिट का जो क्वेश्चन है हाँ। ना, कि अपर कास्ट सारे मेरिटोरियस है और सारे दलित जो है वो नॉन मेरिटोरियस है, उसी से आपने खुद ही उसको डिस्प्रूव कर दिया हाँ। कि EWS लाना ही इस बात का सूचक है कि मेरिट अल्टीमेटली डिपेंड करती है आपका सोशो इकोनॉमिक, आपका जो भी बैकग्राउंड है। तो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट बहुत बड़ा फैक्टर है आपके मेरिट। फिर आपका दूसरा आता है कि, तो तीसरा चौथा आता है आपका कि इंग्लिश, हर जगह आपने इंग्लिश कंपलसरी कर रखी है ना। आपको टिस में, सोशल वर्क में, हम बार बार वही एग्जाम्पल देता हूँ, आपको भी दे रहा हूँ कि हम्म। टिस में हमें सोशल वर्कर के रूप में ट्रेनिंग मिलती है। हम्म। ठीक है, सोशल वर्कर का काम क्या है, या तो आप स्लम में काम करोगे जाके, या आप रूरल एरिया में काम करोगे, गांव में जाओगे, मनरेगा पर काम करोगे, आप इंदिरा आवास योजना पे काम करोगे, इन सब चीजों पे काम करोगे, है ना। लेकिन एंट्रेंस एग्जाम इंग्लिश में होगा, इंटरव्यू इंग्लिश में होगा, सब कुछ इंग्लिश में होगा। ठीक है, तो आपको ये, फॉर इवन फॉर समबडी लाइक यू हैव टू बिकम अ सोशल वर्कर, यू हैव टू बी वेरी गुड इन इंग्लिश, है ना। देन ओनली यू कैन बिकम अ सोशल वर्कर। तो अब इंग्लिश अपने आप में यहाँ पे इंडिया में एलिट का एक निशानी है। क्योंकि अगर आप देखो तो आज भी आप डेटा उठा के देख लो कि 80-90% बच्चे जो हैं भारत के, वो अपनी मातृभाषा में पढ़ते हैं। अब वो अंग्रेजी में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम है, 10-12-15% होते हैं जो इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, और आपके सारे एंट्रेंस जो है वो सब इंग्लिश मीडियम। तो वो ऑलरेडी एक आपने बहुत बड़ी एक ऑब्स्टिकल आपने खड़ी कर दी। तो ये सारी चीजें मिलकर जो है वो आप मेरिट मेरिट बोलते हैं, और मेरिट मेरिट जो है वो बेसिकली आपका एक हथियार बन गया है। आपने क्या किया है, मेरिट को डिफाइन कर दिया है नंबर से, कि अगर किसी का 90% है तो वो 70% वाले से ज्यादा इंटेलिजेंट है, ज्यादा होशियार है, ज्यादा मेरिटोरियस है। ये आपने एक बहुत ही सिंपल गणित, बहुत ही सिंपल करके आपने बोल दिया, जो कि बहुत सुनने में बहुत अच्छा सही लगता है कि हाँ यार सही तो है, हम्म। नंबर नंबर ज्यादा है तो इंटेलिजेंट ज्यादा है, लेकिन खुद दलित भी नंबर्स, मानने लग जाते हैं कई हाँ बार। दलित भी मानते हैं, हाँ, मैं भी मानता था बहुत पहले। बट एक्चुअली नंबर्स आर, ऑफ कोर्स यू हैव टू वर्क हार्ड टू गेट गुड नंबर्स, आई एम नॉट डिनाइंग, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेहनत नहीं करना पड़ता है, लेकिन नंबर्स एक्चुअली, अगर आप CBSE का रिजल्ट निकालिए, आप किसी भी स्कूल का रिजल्ट निकालिए, 99% लाने वाले कौन लोग हैं, वो दिल्ली में ही आएंगे, बैंगलोर में ही आएंगे 99। झारखंड के गांव में बैठा हुआ आदिवासी का बच्चा 99 क्यों नहीं ला पाता है, या दलित का बच्चा क्यों नहीं ला पाता, या OBC का बच्चा या नोमेडिक ट्राइब का बच्चा 99% झारखंड के गांव में, बिहार के गांव में बैठ के क्यों नहीं ला पा रहा है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या है कि सिर्फ दिल्ली में या कुछ जगहों पे रहने वाले लोग इंटेलिजेंट हैं, या वही 99 परसेंटर है। तो वो ऐसा नहीं है, कि आपका मार्क्स जो है वो बेसिकली आपका बैकग्राउंड को भी बताता है, वो भी उसका भी ये मार्कर है कि आप अगर अच्छे बैकग्राउंड से हैं, यू विल बी एबल टू स्टडी इन गुड स्कूल, यू हैव ऑल द फैसिलिटीज, सो डेफिनेटली यू विल गेट 90% प्लस मार्क्स। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। दूसरी तरफ हमारे बच्चे होते हैं, अब वही है कि मेजोरिटी, आप देखिए हमारे बच्चे जो है, अब वो मैं उस बच्चे की बात नहीं कर रहा जिसको हर सवर्ण जानता है,
एक दलित आईएएस का बेटा, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो तो मुझे आज तक नहीं मिला सोशल साइंस में तो एटलीस्ट, कि दलित आईएएस का बेटा मेरे साथ रिजर्वेशन लेके पढ़ रहा हो। तो वो उनका, उनके हिसाब का दलित है। लेकिन मैं जितने दलित लड़कों और लड़कियों को जानता हूँ, आदिवासी बच्चों को जानता हूँ, वो ज्यादातर सेमी अर्बन और रूरल बैकग्राउंड से ही आते हैं। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन लिटरेट है ना, सेकंड जनरेशन मैक्सिमम मेरे जैसे लोग हैं, मैक्सिमम बहुत ज्यादा हुआ तो सेकंड जनरेशन लिटरेट, हम्म, इससे ऊपर कोई नहीं। तो आपने हमको एक दो जनरेशन बस हुई है, and you have been judging us, you have been abusing us, you have been, you know, I mean, it's so brutal the way, the way the concept of merit and the whole discourse of reservation is staked against us. It is so brutal. हम्म, हमारे बच्चों का पूरा कॉन्फिडेंस तोड़ देता है। अब हमारा बच्चा गाय चरा के, भैंस चरा के, है ना, लड़की हमारी जो बच्चियां हैं वो घर का पूरा खाना बना के 60% नंबर लेके आते हैं, 55% नंबर लेके आ रहे हैं, है ना, पूरी मेहनत करके। तो मेरे लिए तो वो मेरिटोरियस है ना। फॉर मी दैट बॉय और गर्ल इज मोर मेरिटोरियस who have scored this much marks, fighting against all odds, and rather than in comparison with those students who are studying in elite institutions, right? और जो दिल्ली में है, एक बार मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। हम्म, एक बार मैं नलसर हैदराबाद में, मेरा एक मीटिंग था, मतलब एज ए स्पीकर बुलाया था। तो सारे एलएलबी एलएलएम वाले थे, और आपको पता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज कितनी एलिट होती हैं। बिल्कुल। तो तो बात चल रहा था रिजर्वेशन पे, तो जब भी आई स्पीक, तो अगर अपर कास्ट है ऑडियंस में तो पहला क्वेश्चन आता है रिजर्वेशन, है ना। हम्म। आप दुनिया भर का कुछ भी उनको सुना दो, हाँ, बट पहला उनका वो क्वेश्चन। वो वो जैसे कुत्ते की पूछ पूछ होती है ना, वो टेढ़ी की टेढ़ी रहते, वो तुरंत घूम के उधर ही आते हैं, व्हाट अबाउट रिजर्वेशन। हाँ। तो मेरा बोला, मैं सिंपल सा बोला कि आपका ये जो क्लैट का ये जो चल रहा है, एलएलबी एलएलएम जो भी है, आप जाइए जरा, आपके सब लोग एंट्रेंस एग्जाम से आए हैं, ठीक है, आपने बहुत क्वालिफाई, यानी कि मेरिट, सब सब में मेरिट है। तो आप एक सर्वे करिए अपने क्लास में जाके, सिर्फ अपर कास्ट लोगों का। आप शेड्यूल कास्ट को भूल जाइए सर, हम तो मेरिट है ही नहीं, हम तो मान लेते हैं कि हम तो आ गए रिजर्वेशन की वजह से। वेयर इज द पुअर ब्राह्मण बॉय और गर्ल इन योर क्लास? गरीब, आपका गरीब ब्राह्मण कहाँ है आपके क्लास में? आप में 70-80 है, 100 में से 70-80 आप लोग हैं, 70-80 में आप सभी के सभी सुपर एलिट है। तो हम्म, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम का डिजाइन है वो ऐसा है कि ओनली एलिट विल कम, तो हम्म, अवर एलिट विल ऑल्सो कम। तो अगर आप बोलते हो ना कि ये दलित लोग आ रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आपका एग्जाम का डिजाइन ही ऐसा है कि सिर्फ एलिट ही आ सकता है, चाहे वो एलिट शेड्यूल कास्ट हो, चाहे वो एलिट अपर हम्म, कास्ट हो। तो आप मेरे को पूरे कैंपस में आप जाइए और सर्वे करके दिखाइए मुझे कि कोई अपर कास्ट जो रिक्शा वाला का बेटा हो, बेटी हो, या जिसके पास 1 एकड़ 2 एकड़ की खेती हो, या मजदूर का बेटा, आप मेरे को एक एग्जाम्पल ला के दिखा दो आपके पूरे नलसर से, ठीक है। और वहीं पे जितने SC ST स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको इनका सर्वे करके बताऊंगा कि 70 to 80% ऐसी बैकग्राउंड से होंगे, आप ही के इंस्टीट्यूशन, है ना। तो आप करके देखो, आप सिर्फ अपने क्लास का करके देखो। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका मेरिट का क्वेश्चन है, आपको ये लगता है ना कि ये एंट्रेंस एग्जाम आर द ट्रू मार्कर, ट्रू ट्रू टेस्ट ऑफ मेरिट? नहीं, आपके खुद की कम्युनिटी में भी सिर्फ वही लोग आ रहे हैं जो सुपर एलिट है, क्योंकि आपका ये सारे एंट्रेंस एग्जाम का डिजाइन ही वैसा है। तो जब आपके वीक लोग नहीं आ पा रहे हैं, तो हमको भी थोड़ा प्रॉब्लम होगा, हमको भी थोड़ा समय लगेगा, है ना। हम्म, और ये मतलब इसमें कुछ, ये कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। इट्स नॉट समथिंग, मेरिट इज नॉट समथिंग व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। फॉर अ टीचर इट्स सो इजी टू अंडरस्टैंड कि कोई बच्चा कहाँ से आ रहा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, कोई बच्चा कहाँ से आ रहा है। तो अगर वो इंग्लिश मीडियम में, अपर कास्ट है, शहर का है, तो वो डेफिनेटली इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट दिखेगा, इंटरव्यू में ज्यादा आंसर दे पाएगा। फिर लास्ट का रहता है कि आपका जो टेस्ट क्या करते हैं आप एग्जाम में पूछते क्या है। जैसे टिस में मैं बताया था, पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ। टिस में क्वेश्चन आते हैं, बिलियर्ड टेबल पे कितने कलर की गेंदें होती हैं? ये आपका जीके का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये यूरोपियन फुटबॉल में ये क्लब वो क्लब,
अब भाई हम भी, हमको भी नहीं पता, हमने तो बिलियर्ड टेबल सिर्फ टीवी पे देखी है ना, ऐसे कभी देखा होगा इधर उधर, हमने तो आज तक टच भी नहीं किया, हमको तो पता भी नहीं। तो अब आप हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि बिलियर्ड में कितने कलर की गेंदें होती है या क्या होता है, एंड दिस इज योर टेस्ट फॉर माई इंटेलिजेंस, राइट? तो फिर यूरोपियन फुटबॉल के बारे में आप पूछ रहे हो, है ना? स्मॉल तो टाउन्स में आप तो फिर मना किया जाता है बिलियर्ड्स वगैरह के लिए, कि बिगड़े हुए बच्चे हैं वो पूल वूल खेलते हैं, तो हमें तो मना किया गया है कि कभी जाओ ही मत हम वहां पे। हम तो उस एरिया से आए हैं जहाँ पे ये भी बात नहीं पहुंची है कि पूल खराब चीज है। तो मतलब वो है ही नहीं। When I came to Delhi, then I came across, और वो भी अभी तक I have never played, I have never even touched वो पूल का टेबल। और मेरे को मैंने हम्म। मैं एक बार रविकांत के यूनिवर्सिटी गया तो उसने दिखाया था कि सर देखो ये बिलियर्ड टेबल ऐसा होता है। अब दिस इज हाउ यू 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 नो यू आस्क क्वेश्चन। फिर आप जेएनयू का एंट्रेंस, सॉरी, हाँ जेएनयू का एंट्रेंस एग्जाम, आप एमए में अमर्त्य सेन का आपने दे दिया है बड़ा सा टेक्स्ट, और उसको आप बोल रहे हो कि एनालाइज करो। मुझे बताओ कि कौन सी स्टेट यूनिवर्सिटी में, है ना, लोकल यूनिवर्सिटी में अमर्त्य सेन जो है वो आपको बीए में पढ़ाएगा? सिवाय दिल्ली यूनिवर्सिटी में होगा, आपका कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में होगा। ये तो दिस इज द अमाउंट ऑफ रिडिकुलसनेस इज इन योर एग्जाम। ठीक है, और आप बोलते हो कि एक तो इंग्लिश में है, फिर दूसरा आपका क्वेश्चंस जो है जिससे आप नॉलेज टेस्ट करते हो वो बहुत एलिटिस्ट है, और फिर आप बोलते हो कि हमें मेरिट नहीं, है ना, आप लोग मेरिटोरियस हैं। तो इस अब मुझे दुख इस बात का होता है कि इंग्लिश को लेकर कि इंग्लिश इतना बड़ा बैरियर है। I never found any academic research or academic paper from any of the top educationists in India. कभी कभार दे विल स्पीक क्या इंग्लिश हैज क्रिएटेड अ डिस्पैरिटी, लेकिन आप भी जेन्यू से हैं, आप मुझे बताओ कि कभी इंग्लिश इतना जरूरी क्यों है हायर एजुकेशन में, इस पर कोई डिबेट, कोई मतलब हुआ हो? दूसरा, आप मुझे एक पेपर बताओ जिसपे मेरिट के क्वेश्चन को इंट्रोगेट किया हो कि व्हाट हम्म। इज मेरिट। एवरीबडी, एवरी अपर कास्ट, चाहे वो लेफ्ट का हो राइट का हो, वो ही हैज उनका कंसेंसस है कि नंबर लाना मेरिट है। ठीक है, आप प्रो रिजर्वेशन कितनी भी बात कर लो, लेफ्ट वाले बात करते हैं बहुत सारे अपर कास्ट है प्रो रिजर्वेशन, उसका कोई फायदा नहीं। क्योंकि जब तक आप मेरे को वो जो मेरिट का जो प्रेशर है मेरे सर पर बैठा दिया गया है ना, जो जो शेम, जो स्टिग्मा, उसको जब तक मैं चैलेंज नहीं करूंगा, आई कैन नॉट इवन लिव लाइफ विद डिग्निटी। क्योंकि मैं हमेशा, अब मैं अगर आईआईटीएन भी हूँ, ठीक है, मैं शेड्यूल कास्ट हूँ या शेड्यूल ट्राइब हूँ, मैं आईआईटीएन भी हूँ ना, तो मुझे मालूम है कि मेरे क्लासमेट्स जिंदगी भर मेरे को नीचे ही देखेंगे। हम्म। भले ही मैं कॉर्पोरेट ऑफिस में हूँ, भले ही मैं मेरे पास ऐसे ऐसे दोस्त हैं, दे आर इन टॉप सर्जन्स इन यूएस, बट स्टिल दे हाइड देयर आइडेंटिटी, दे आर स्टिल नॉट एबल टू टेल दैट दे आर शेड्यूल। टॉप सर्जन है, टॉप है अपनी फील्ड के, लेकिन उनको प्रिटेंड करके रहना पड़ता है कि दे हैव कम थ्रू मी बिकॉज। तो यहाँ पर ये कास्ट नहीं है, आप आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। दिस इज दिस दिस इज द घोस्ट ऑफ मेरिट, कि आई हम्म। एम नॉट इवन एबल टू एंजॉय माई एकेडमिक एंड प्रोफेशनल सक्सेसेस। क्योंकि जब भी मैं बोलूंगा आई एम एन आईआईटीएन, अब जैसे ट्विटर पे डालते हैं आईएएस लोग, अरे मैं आईएएस ऑफिसर हूँ, है ना, मेरे 10th में इतने ही नंबर आए थे लेकिन मैं फिर भी आईएएस ऑफिसर। आई डोंट थिंक एनी शेड्यूल कास्ट कैन से दिस आईएएस ऑफिसर। क्योंकि उसका अब देखो ना, टीना ढाबी का कितना टीना ट्रोलिंग हो ढाबी गया का बेचारे ट्रोलिंग, हाँ, का। जबकि रेगुलरली मतलब चलता है उनका ट्रोलिंग। सोचो, शी इज शी इज द टॉपर, है ना, हम्म। नंबर 1 रैंक लाई है, फिर भी उसको मेरिट के नाम पे गालियां पड़ती। ठीक है, एंड और इसीलिए मेरा जो लेफ्ट लिबरल से हमेशा से झगड़ा रहा है, वो पुराना झगड़ा रहा है कि यू हैव नेवर चैलेंज दिस कंसेप्ट, क्योंकि यू योरसेल्फ बेनिफिटेड फ्रॉम इट। आपने जेएनयू को मस्त एक अपना कुकून बना लिया, क्रांतिकारी। ठीक है, अब उसमें अगर आप मेरिट के क्वेश्चन को टच करोगे तो सबसे पहले तो आप ही पे उंगली उठेगी कि इतने हाँ। सारे आप कहाँ से आ गए, है ना। तो इसलिए बहुत ही कन्वीनियंटली मेरिट के क्वेश्चन को टच नहीं किया है। इवन पहले तो रिजर्वेशन का भी विरोध होता था, अभी रिजर्वेशन का सपोर्ट होता है, लेकिन आज भी नो बडी क्वेश्चन द कंसेप्ट ऑफ मेरिट, कि मेरिट क्या है।
जेएनयू में तो वो भी है ना कि जब तक आप बुर्जुआ नहीं स्पेल कर पाओगे तब तक क्रांति भी नहीं ला पाओगे। तो वहाँ मार्क्स नहीं, मार्क्स भी इम्पोर्टेंट है। तो तो वो नहीं, एक मार्क्स तो एलीट सर्किल मा- का हिस्सा है, मतलब जितने भी दिल्ली के या फिर बॉम्बे के जितने भी एलीट कॉलेजेस के अंदर आपका एडमिशन भी हो जी जाए, तो उसका फिर एक जी जी सोशल सर्किल किस तरह से बनेगा, क्या बातें जी होंगी, उसमें भी जी आप जी आइसोलेटेड फील करोगे अगर आपको आती नहीं वो चीजें, वो नेटफ्लिक्स की सीरीज के बारे में आपको नहीं पता, आप जैसे बिल्कुल पूल बता बिल्कुल रहे हैं उसके बारे में नहीं पता, इन रेवोल्यूशनरी फिगर जो इंटरनेशनल हैं उनके बारे में नहीं पता, जी तो वो जी गैप तो घुसने के बाद भी बना रहेगा। जी जी। तो वो रहता है, लेकिन उससे तो हम फिर भी मतलब वो तो थोड़ा सा क्लास डिफरेंस हो जाता है ना, हम्म। कि आपका, बट ये कास्ट वाला तो मतलब मेरिट का जो है वो सीधे मतलब क्लास से है डेफिनेटली, बट नाउ इट हैज बिकम मोर कास्ट, मतलब ये from the day one it was caste actually. And it's very interesting that the first people who talked about reservation ruining merit were the leftist in 60s, and 1950s 60s mein, they were the first people to coin this term that reservation is harming merit. हम्म। तो फिर ये सारी चीजें आपने प्रॉब्लम्स तो देखी, फिर नालंदा के थ्रू आपने किस तरह से किया कि ये इतनी प्रॉब्लम्स है तो नालंदा का मॉडल इस तरह से बनाया जाए कि इन प्रॉब्लम्स को पूरी इस तरह से बदला नहीं तो एटलीस्ट बहुत कम किया जा सके, तो वो आपने मॉडल फिर किस तरह से तैयार किया? ये था कि मतलब मैं तो ट्रेन टीचर नहीं हूँ, आई हैव नेवर बीन, नो, नेवर थॉट टू बी अ टीचर। तो मेरा ये था कि कुछ तो प्लेटफॉर्म चाहिए, मतलब कि कुछ तो चाहिए जहां पे हम बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं दे कैन कम टुगेदर एंड इंटरेक्ट, एंड ऑल्सो मतलब कुछ तो हम उनको ट्रेन कर सके कि हाउ द वर्ल्ड आउटसाइड इज, है ना। आपको जब आप जाओगे हायर एजुकेशन में तो आपको कैसे देखा जाएगा, क्योंकि आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, when I went to engineering college for the first time, I had absolutely no clue that caste will play such a big role in my life, है ना। मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था, मैं एक क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल से पढ़ा था, इंग्लिश मीडियम था, प्राइवेट स्कूल था, कभी कास्ट से कुछ इतना लेना देना नहीं था, ठीक है। टीचर भी सारे ज्यादातर मलयाली थे। तो आई ग्रू अप इन एन एनवायरमेंट वेयर आई न्यू कास्ट, ऐसा नहीं कि मेरे को कास्ट का आइडिया नहीं था, आइडिया था, सब कुछ था, डिस्क्रिमिनेशन भी देखा था, अनटचेबिलिटी भी देखी थी, बट your teacher will be discriminating against you, your teacher will be targeting you, your teacher will be abusing you, your teacher will be judging you। ये मैंने नहीं सोचा था, मेरे को लगता था कि दोस्त लोग बोलेंगे अरे मैं ब्राह्मण हूँ, तुम कौन हो, ये तुम नीची जाति के हो, तुम्हारे साथ खाना नहीं खाएंगे, तुम्हारे साथ बैठेंगे नहीं, एंड दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स आई इमेजिन्ड कि वो आई हैव सीन दैट। लेकिन दिस आई कुड नॉट इमेजिन दैट टीचर कैन हेट यू, and teacher will fail you, and teacher will abuse you, teacher will beat you up, teacher will threaten your career। तो ये मेरे लिए एकदम नया था, तो और उस समय मुझे यही लगा था कि आई नीडेड somebody टू टॉक, आई नीडेड somebody जिसको मैं बता सकूं, जो मुझे बता सके कि अब 16-17 साल की उम्र में मैं घर से पहली बार निकल रहा हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो मैं चाहता था कि कोई तो ऐसा मिले जो मुझसे बात करे इस पर। मुझे लग रहा था कि मेरे साथ ही हो रहा है, the first reaction was that maybe I was wrong, maybe it is because of me happening, or and I found no one, and I found nobody, there was not even a single SC/ST teacher, कोई भी नहीं था। I could not even talk to my family members, उनको कुछ आइडिया नहीं था इतना। और फैमिली मेंबर्स का तो वही रहता है कि चुपचाप पढ़ लो, अगर है भी प्रॉब्लम तो चुप रहो, कुछ भी मत बोलो। तो आई न्यू कि फैमिली मेंबर्स भी यही बोलेंगे। So that 3 years of period when I was in engineering was a very very difficult time for me। मतलब इतना मुश्किल था कि आई वॉज ऑलमोस्ट सुसाइडल, मतलब मैं सुसाइड नहीं किया, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गाली मिल रही है बिना बात के, अब्यूजेस हैं, है ना। और मेरे साथ तो कम होता था क्योंकि मैं थोड़ा सा अच्छे बैकग्राउंड से था, इंग्लिश मीडियम था। मैंने अपने बच्चों को, जो शेड्यूल कास्ट ट्राइब बच्चे जो गांव से हैं, उनके साथ तो बहुत कुछ बुरा होता था। मतलब टीचर भी गाली दे रहा है, साथ में स्टूडेंट्स भी उनको गाली दे रहे हैं, मेस में वो ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट 90s, हाँ। तो रैगिंग में कास्ट बेस्ड रैगिंग होती थी, पूरी कास्ट बेस्ड थी, मतलब आप आपका कैटेगरी बताओ और उसके हिसाब से आपकी मार पिटाई होगी। तो अब वो सब मैं देख रहा था और मुझे समझ में नहीं रहा था कि वो क्यों रहा है, मतलब ठीक है,
हम डिफरेंट हैं, हम शेड्यूल कास्ट हैं, ये है, लेकिन इतना हेट, इतना हेट। आप मतलब मुझे अभी भी याद है कि मेरा जो एक रूम पार्टनर था, अरोड़ा का था, वो पंजाबी, उत्तराखंड का था, बट वो पंजाबी था। तो वो मुझे अभी भी याद है, मतलब आई स्टिल रिमेम्बर दैट फेस एंड द वे ही टॉक टू मी। वो आया मेरे साथ, हम लोग रूम लेकर एक साथ रूम अलॉट हुआ हमारा। कुछ दिन हम बहुत अच्छे से रहे, क्योंकि वो कुड नॉट मेक इट आउट कि मैं कौन हूँ। फिर कभी उसको पता चला कुछ 3-4 दिन बाद, तो मेरे को बोलता है, अरे मुझे तो पता ही नहीं था, नहीं तो मैं नहीं रहता तुम्हारे साथ। एंड सडनली यूर सेइंग, अरे इस 4-5 दिन से तो मेरे साथ खाना खा रहा है, घूम रहा है, हम लोग मस्ती कर रहे हैं, हम लोग नए नए इंजीनियरिंग कॉलेज में आए तो ना, नया नया इंजीनियरिंग कॉलेज में आप जाते तो आपको लगता है आप हीरो हो गए, ओके आपने एक एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई किया। एंड सडनली दिस, एंड द वे ही सेज विथ इमेंस हेट, मतलब सी, ठीक है आप, मतलब नॉर्मली आप बोल सकते हो कि अरे तुम गधे हो, तुम ऐसे हो वैसे, आई कैन अंडरस्टैंड। बट द वे ही सेड, विदाउट इवन लुकिंग एट मी, एंड उसका जो कंटेम्प्ट था उसके चेहरे पर मेरे लिए, एंड सडन, मतलब कोई गलती नहीं, कोई कुछ नहीं, जस्ट बिकॉज आई बिलोंग। तो दैट वाज वेरी बहुत हिट करता है। फिर मेरा पहले ही दिन हमारे प्रोफेसर साहब जब इंट्रोडक्शन लेते हैं, तो वो बोलते हैं कि जो SC ST हैं वो अच्छे से पढ़ें, मायावती नंबर नहीं देगी, मैं दूंगा। 95 की बात है, मायावती नई नई चीफ मिनिस्टर बनी है। तो अब आप सोचो, पहले दिन ही आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हो और आपका प्रोफेसर जो है, एंड इज अ सीनियर प्रोफेसर, हाँ, जर्मनी उर्मनी से PhD करके आया, रैंडम ऐसा कोई नहीं है। एंड सडनली से इसकी, ये जितने SC ST हैं ध्यान से पढ़े, अच्छे से पढ़े, मायावती नंबर नहीं देगी, मैं। एंड एवरीबडी इज लाफिंग, है ना, सब लोग हंस रहे हैं, सबको लग रहा है कि बहुत अच्छा सर ने जोक मारा है, और हम 7-8 लोग वहां पे चुपचाप बैठे हुए हैं, है ना। तो ये सब मेरे लिए इतना शॉकिंग था शुरुआत में। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि क्या है, तो बट वही कि आप कुछ कर नहीं सकते, आप वहां पे ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, आप कुछ, हम लोग मतलब कुछ भी नहीं कर सकते। तो देन आई स्टार्टेड, तो कुछ 6-7 महीने के बाद आई स्टार्टेड टेकिंग लीड। मैं अपने बच्चों से, जिनको वो परेशान करते थे, उनके साथ मिलकर बात करना, प्रोटेस्ट करना, बहुत कुछ किया। तो फिर लास्ट में मुझे बहुत तंग किया गया। तो that 3 years period actually was my, that changed my life again. I'm repeating that, but that was a very crucial period of my life. And that was a time when then I understood कि हम कितने vulnerable हैं। और ये हम vulnerable क्यों थे? क्योंकि हमारे पास कोई था नहीं हमारी सुनने वाला, हमको बताने वाला। तो हमको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए ही। तो नालंदा का जन्म उसी से हुआ कि हमको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे बहुत सारे बच्चे आए, एक दूसरे से बात करें। दिस वाज द आइडिया। तो मतलब इसमें फिर एंट्रेंस किस तरह से आप लेते हैं, बच्चों को किस तरह सेलेक्ट करते हैं, कोई इसमें टेस्ट होता है किस तरह से, वो पूरा प्रोसेस किस तरह से वर्क करता है? मार्जिनलाइज स्टूडेंट को कैसे पता चलेगा कि नालंदा में उनको आना है, या नालंदा जैसी कोई संस्था है जहाँ पे वो जा सकते हैं? तो ये पूरा स्ट्रक्चर, एंट्रेंस का स्ट्रक्चर और स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करने का स्ट्रक्चर, ये किस तरह से होता है? एंट्रेंस तो हम लेते ही नहीं, क्योंकि हमारी लड़ाई ही उसी के खिलाफ है। तो कोई एग्जाम नहीं होता, कोई एंट्रेंस नहीं होता। मैं आपके नंबर भी नहीं पूछता हूँ कि आपको 12th में कितने आए, 10th में आए, क्योंकि आर होल बैटल इज अगेंस्ट दैट। द आइडिया इज कि वो बच्चे जिनको पढ़ना है, बट उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, यानी कि गांव से हैं, पैसे नहीं है, या या मतलब घर में लोग बीमार हैं जिसकी वजह से उनके ड्रॉप आउट हो गया है ना, ऐसे बच्चों को हम लेते हैं। तो ओनली क्राइटेरिया इज कि आई ट्राई टू टेक दोज स्टूडेंट्स विच आई फील डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज विच अदर स्टूडेंट्स हैव। नंबर, मेरिट, इंटेलिजेंस, ये सब कुछ नहीं होता ये है, तो आप क्योंकि आई, कोचिंग का अपोजिट कर रहे हैं कि कोचिंग वाले तो उनको लेते हैं हाँ, जिनका सिलेक्शन हो सके ताकि नहीं कोचिंग का नाम नहीं नहीं बढ़े। तो नहीं आपका नहीं मॉडल उस नहीं, बिल्कुल उल्टा है उसका एक ठीक तरह से। उल्टा, मैं ठीक उल्टा, मतलब मैं सबको बोलता भी हूँ कि मेरे को ऐसे बच्चे भेजो जो फेल हो रहे हैं, या जो 40% है, 45% है। और 80-90% वालों को मैं पढ़ाता भी नहीं हूँ। तो अगर कोई इंग्लिश अच्छा। मीडियम है, 80% है, 90% है, और गाड़ी दिख गई मेरे को, गाड़ी से आया है, तो मैं मना कर देता हूँ। तो मैं वैसे बच्चों को लेता हूँ जो अपना बैग झोला लेके सीधे आते हैं और बोलते हैं सर हमको पढ़ाओ। वो ये भी नहीं पूछते मेरे से कि सर सीट है या नहीं,
मेरे पास बच्चे आते हैं और झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, वो पूरा झोला बैग लेके, अपना बिस्तर लेके आते हैं और नालंदा के गेट पे खड़े हो जाते हैं कि सर हमको पढ़ाओ। और और फीस? कोच का जीरो। जीरो कुछ फीस? पैसा नहीं देता है, बच्चों से पैसा नहीं लेता। तो क्योंकि फिर सारा पर्पज ही मतलब, देन अगेन अगर मैं इफ आई स्टार्ट टेकिंग मनी, अगर मैं 100 रुपए भी अनुराग भाई लूंगा ना, कुछ बच्चे पीछे छूट जाएंगे। 100 रुपए में भी? हमारे बच्चे 100 रुपए में, अरे पॉवर्टी का लेवल हमने सिर्फ किताबों में पढ़ा है, जब मैं रियल जब जाता हूँ ना फील्ड में, या बच्चे आते हैं, तब समझ में आता है कि पॉवर्टी का लेवल कितना ज्यादा है। अगर मैं 100 रुपए भी फीस रख दूंगा ना, तो 10 बच्चे छोड़ देंगे। तो क्योंकि अब क्या मतलब आपको जो क्या कि लोग बताऊं, ऐसी सोच भी ऐसी नहीं सकते स्टोरीज हैं। नॉर्मली, इस तरह से लोग हाँ, सोच भी नहीं सकते कि नहीं सौ नहीं रुपए में नहीं भी नहीं, ऐसा हो सकता है क्योंकि 100 रुपए, अगर मैं 100 रुपए भी फीस रख दूंगा, देयर विल बी सम ड्रॉप आउट्स। हम्म। ठीक है, और फिर हम बच्चों का सारा खर्चा उठाते हैं, रहने का, खाने का। तो सिर्फ फीस, ऐसा नहीं कि हम फीस ही नहीं लेते, वी वी ऑल्सो प्रोवाइड देम फूड एंड अकोमोडेशन एवरीथिंग। वो बीमार पड़ते हैं तो उसका भी खर्चा। तो मतलब आप एकदम 1 रुपया भी नहीं है, आप चले आओ बस। वाह। तो इससे क्या होता है, फिर बच्चे मन लगा के पढ़ते हैं, क्योंकि वी हैव टेकन केयर ऑफ ऑल देयर बर्डन्स। क्योंकि फाइनेंशियल बर्डन बहुत बड़ा बर्डन होता है, क्योंकि बच्चों को एक्चुअली, गांव के बच्चे और अपने कम्युनिटी में गरीब बच्चे जो होते हैं, शहर जो सेमी अर्बन से होते हैं, वो जैसे जैसे बड़े होते हैं, वो एक गिल्ट भी लेकर जीते हैं कि हम्म। मैं हम घर के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। 10th 12th तक तो उनको फर्क नहीं पड़ता है, जैसे ही 12वीं होती है, घर वाले सब बच्चे सेंसिटिव होते हैं, उनको समझ में आता है कि मेरे माँ बाप बहुत गरीब हैं, माँ बाप बीमार हैं, घर में 3 बहनों की शादी होनी है, 4 छोटे हम्म। भाई हैं, वो पढ़ नहीं रहे हैं। तो हमारे बच्चे क्या होते हैं कि जैसे जैसे बड़े होते हैं, वो और ज्यादा गिल्ट लेते जाते हैं कि हम कुछ कर नहीं रहे, हम कुछ कर नहीं रहे, हम कुछ कर नहीं रहे। तो वो बहुत तगड़े स्ट्रेस में रहते हैं। तो वो 10 महीने के लिए मैं दूर करता हूँ हम्म। कि आप, और इवन अगर जैसे हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो लेबर होते हैं, मजदूरी करते हैं, हम्म। और पढ़ना चाहते हैं, तो पढ़ेंगे तो मतलब उनकी मजदूरी चली जाएगी। तो हम उनके घर पे भी पैसा भेजते हैं। अरे ठीक है, ओ, तुम्हारा कितना अच्छा। कमाते हो, तुम कितना कमाते हो, 3,000 4,000, ठीक है, तो हम तुमको, तुम्हारे घर वालों को 2,000 भेज रहे हैं, 2,500 भेज रहे हैं, पढ़ो तो। क्योंकि और कोई तरीका नहीं है बदलाव। ये अगर हम उस लास्ट बच्चे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो फिर देर इज नो मीनिंग। मतलब फिर मेरे को तो कुछ मीनिंग नहीं लगता है लेकिन कि इफ आई एम सर, नॉट हाउ डू एबल यू टू रीच टू। सस्टेन इस मॉडल में? फ्रेंड्स हैं बहुत सारे, अभी मुझे कुछ 25 साल हो गया ऑलमोस्ट काम करते करते, अगर मैं इंजीनियरिंग कॉलेज से काउंट करूं। तो बहुत सारे दोस्त बने, इनसाइट की वजह से, मैगजीन की वजह से, डॉक्यूमेंट्रीज की वजह से। तो लोग मुझे 20-25 साल से काम करते हुए देख रहे हैं, तो लोगों को काफी ट्रस्ट है मेरे ऊपर। और हम्म। और मैं इंडिविजुअल सपोर्ट लेता हूँ, मैं किसी गवर्नमेंट के पास नहीं जाता, मैं एनजीओ से नहीं लेता, मैं किसी के पास नहीं। आई बस एक बार, साल में एक बार ट्विटर ट्विटर पे एक बार डाल देता हूँ कि भाई मेरा ये ना चाहिए, एंड वी गेट। और हम्म। दूसरा ये होता है कि हमारा जो मॉडल है वो थोड़ा सस्टेनेबल इसलिए है, क्योंकि हमारा बहुत सारा काम वॉलेंट्री है ना। तो मैक्सिमम हमारा जो है वो सब कुछ हम अपने आप ही कर लेते हैं, सब कुछ अपना वॉलेंट्री ही है। तो हमारा बहुत ही मिनिमम फाइनेंशियल बर्डन पे हम काम करते हैं, बहुत ही कम फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में हम काम करते हैं, जितना हम मिनिमाइज कर सकते हैं मिनिमाइज करते हैं। और दूसरा, कम्युनिटी सपोर्ट के होने की वजह से, जैसे कि नालंदा जो है, उसको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता है रेंट के लिए जाके, क्योंकि वो बुद्ध विहार में हम पढ़ाते हैं। तो हम हाँ। कम्युनिटी ने उसको फ्री में दे रखा है हम। तो हमारा बहुत सारा काम ऐसे ही हो जाता है, क्योंकि कम्युनिटी को समझ में आता है कि हम उनके बच्चों के लिए पढ़ा रहे हैं, तो फिर वो पैसे नहीं लेते हम मेरे से। तो मेरा बहुत सारा काम जो है बहुत कम पैसे में होता है। क्योंकि तो कई दैट इज लोग अ तो वे इसलिए आइडिया नहीं बिजनेस। करते कि वो उनको लगता है इम्पॉसिबल है इसको सस्टेन करना, बिना पैसे लिए कैसे हो सकता है, फ्री में कैसे एजुकेशन प्रोवाइड की जा सकती है। तो कई लोग तो करते ही नहीं कि ये पॉसिबल ही कैसे, जैसे मतलब सुनने में ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, आई आई हाँ। अंडरस्टैंड दैट, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन अनुराग भाई, अभी मुझे तो इसके अलावा कोई ऑप्शन दिखता नहीं कि एक कम्युनिटी जिसको इतनी गालियां दी जाती हैं कि इसमें मेरिट नहीं है, योग्यता नहीं है, इसके लोग सेल्फिश होते हैं, हम्म। इसके पढ़े लिखे लोग इसको धोखा देते हैं। तो आई एम ट्राइंग टू फाइट ऑल दीज बैटल्स विद नालंदा। ठीक है, इट्स नॉट वन बैटल, आई एम नॉट फाइटिंग जस्ट वन बैटल ऑफ मेरिट,
आई एम ट्राइंग टू फाइट मैनी बैटल्स इन दिस की हमारे लोग चला नहीं पाते हैं किसी काम को, इनिशिएटिव को, है ना, हमारे हम्म लोग बिक जाते हैं जल्दी, हम्म हमारे लोग हम्म में। तो ये सारी चीजों से मैं लड़ रहा हूँ। और और क्योंकि तभी कम्युनिटी में प्राइड आता है। देखिए, कोई भी ऑप्रेस्ड कम्युनिटी जो होती है, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि उसका कॉन्फिडेंस तोड़ दिया जाता है खुद हम्म की कैपेबिलिटीज में। आप चाहे वो ब्लैक्स को देख लो, चाहे आप विमेन, अगर आप जेंडर के पर्सपेक्टिव से देखो, तो हर ऑप्रेस्ड कम्युनिटी का यही एंगल होता है कि जो ऑप्रेसर है वो आपको बार बार ये बोलता है कि तुम काबिल नहीं हो, हाँ, जैसे औरतों ये बोलता है तुम ये नहीं कर सकती, या फिर ये तुम वाला ये जॉब नहीं तुम कर नहीं कर सकते, सकती। तुमसे नहीं हाँ। होगा, तुम ये नहीं होगा, तुम्हारे लोग ऐसे होते हैं, तुम्हारे लोग धोखा देते हैं, तुम्हारे लोग बिक जाते हैं, तुम्हारे लोग दारू के एक उस पे वोट देते हैं, है ना। मैं तो यही सुन सुन के बड़ा हुआ हूं, है ना, कि तुम दो लोग जुड़ते हो तो चार ग्रुप बन जाते हैं। तो हम्म वो सब है, मैं मना नहीं कर रहा। आई एम नॉट सेइंग दैट that that doesn't happen or that can't happen. But I am trying to say that we are as good as anyone. We are as talented as anyone. हम भी इंसान हैं, हम कुछ अलग नहीं है। मतलब हम में और किसी में भी कोई अंतर नहीं है। एंड दिस आई एम नॉट प्रूविंग टू अपर कास्ट। मैं तो अपर कास्ट से एंगेज भी नहीं करता। हम्म तो मेरा तो मतलब मेरा वो फोकस में ही नहीं है, मेरे वो रेफरेंस में ही नहीं है। मैं बहुत जब बढ़िया मेरिट की बात है बात जो करता कि। हूँ, हाँ, हाँ, जो मैं मेरिट की बात होती है तो भी मैं प्रकाश शब्द का भी इस्तेमाल करता हूँ, मैं तो बोलता भी नहीं। हम्म मेरी मेरी दुनिया से वो बाहर है ना, मेरे मेरे वो रेफरेंस में भी नहीं है, और मैं एंगेज भी नहीं करता। इफ यू हैव नोटिस्ड, आई नेवर एंगेज विद अपर कास्ट। मैं अपर कास्ट प्लेटफॉर्म में नहीं जाता, मैं उनसे कुछ लेना देना नहीं रखता। दोस्त बन सकते हैं, यू आर वेलकम, वी कैन बी अ गुड फ्रेंड, बट आपके पास ऐसा कुछ नहीं है जो आप मुझे दे सकते, ठीक है, सिवाय पैसों के। पैसे दे सकते हो, बाकी तो मुझे नहीं लगता है कि हमारी कम्युनिटी के पास कुछ कमी है किसी चीज की। तो with that idea, Nalanda has been created कि we have to prove, not to others. I am not interested in proving to others. I want to prove to our community कि हम भी हैं टैलेंटेड, हम भी उतने ही मोटिवेटेड हैं, हम भी उतने ही अच्छे हैं, हम भी उतने ही विजनरी हैं, हम भी उतने ही कम्युनिटी के प्रति लॉयल हैं जितना और कोई हो सकता है। हम कर सकते हैं, है ना। हम अपने ऑर्गेनाइजेशंस रन कर सकते हैं, हम अपने इंस्टीट्यूशंस रन कर सकते हैं, और खुद अपने खून पसीने से कर सकते हैं। तो मेरे लिए ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है देना, एंड दैट इज व्हाट आई ट्राई टू डू इन नालंदा। इनक्रेडिबल। और मैंने ये भी देखा है कि आप ज्यादा जैसे प्रमोट भी नहीं करते किसी मीडिया वीडिया में। बहुत सारी मीडिया आपसे बात भी करना चाहती है, वो भी मुझे पता है, काफी लोग मुझे भी बोलते हैं बात करने के लिए और वो सब। तो आप हमेशा इन इन चीजों से बड़े दूर रहते हैं, किसी प्रकार के क्योंकि प्रमोशन से या क्योंकि फिर मेरा कोई। मेरा मेरा ऑडियंस वो नहीं है। हम्म मेरा ऑडियंस बहुत अलग है। तो अपना प्लेटफॉर्म अगर कोई होता है, बहुजन प्लेटफॉर्म, तो आई एम ऑलवेज रेडी। मैं कितने सारे इंटरव्यूज में देता हूँ अगर मुझे पता चलता है कि अपना प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मेरी ऑडियंस वहां पे है। तो जो मेरी ऑडियंस ही नहीं है, अभी मैं द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, इंडी टीवी मैं क्या जाके करूंगा? एक तो मेरे को अपर कास्ट से इंगेज करना ही बहुत ट्रॉमेटिक लगता है, क्यों मेरे को उनको बहुत कुछ समझाना पड़ता है। कि पहले तो ये बोलेंगे कास्ट है क्या? उसी में 1 घंटा तो निकल अब जाएगा। हाँ ना, अब मैं अगर बोलूँ कि क्या है, आज भी है इंडिया में कास्टिज्म? क्योंकि आई यूज टू इंगेज अर्लियर। अगर आप मेरा पहले का देखें इनसाइड फाउंडेशन का, तो मेरा हाँ, तहलका में, इंडियन एक्सप्रेस में, द हिंदू में, आई यूज टू, बट इट बिकेम वेरी ट्रोमेटिक आफ्टर अ पॉइंट, बिकॉज आई हैव टू एक्सप्लेन टू देम कि यस, दिस इज रियल, मैं सच बोल रहा हूँ। तो ठीक है। बेसिक चीजें तो बतानी फिर बार बार। हाँ, बेसिक हाँ। चीजें बतानी पड़ती हैं कि यादव एससी नहीं है, ओबीसी है मुझे। वो मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग था। वन ऑफ द वन ऑफ द जर्नलिस्ट, बहुत ही हाई फ्लाइंग जर्नलिस्ट है, और ज्यादातर वो फॉरेन पब्लिकेशन के लिए लिखती हैं। तो ऐसे एक बार उनसे बात हुआ, तो मैं दिल्ली में था, तो उन्होंने फोन किया मेरे को, अनु ये बताओ, यादव एससी होते हैं या ओबीसी होते हैं? तो, बाप रे। वो तो भी। फिर 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 एक बहुत ही मतलब फेमस वो है कि एक एकेडमिक थे, बहुत बड़े सोशोलॉजिस्ट के, तो वो बोलते हैं कि जय भीम, आई डोंट नो व्हाई दलित से जय भीम, जय भीम तो मीन्स वो भीम, वो महाभारत वाले भीम, उनको क्यों बोलते हैं दलित लोग?
तो ठीक है, ये मतलब एक्सेप्शनल केसेस हैं, मैं ये नहीं बट बोल हाँ, रहा हूँ कि यादव सारे वाला ऐसे तो होते हैं। पहली बार सुना है मैंने, ये एलविश यादव को बट युवा दलित नेता बता दें, अगर एक कोई पॉपुलर फिगर है आजकल अमेरिका तो अभी मेरे साथ, मेरे पास तो बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस है। की। फिर वो आई बिकम देयर गेट कीपर ऑफ द दलित मूवमेंट। फिर वो मेरे को डायरी की तरह यूज करते हैं कि अरे हम्म। अनूप, मेरे को इस पर इंटरव्यू लेना है, तुम बताओ मेरे को कोई दलित। तो 1-2 साल दिल्ली में मेरे साथ हम्म। हुआ। फिर देन आई सेड ये टाइम वेस्ट। पहली बात, मेरा ऑडियंस नहीं है ये, और दूसरी बात, फॉर मी इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। आई एम हियर फॉर द कम्युनिटी एंड आई नीड टू टॉक टू द कम्युनिटी। मेरा पूरी दुनिया उनके इर्द गिर्द है। ठीक है, जब मन करेगा मेरा, देन आई विल एंगेज। जब मुझे लगेगा कि कुछ मेरे को कुछ फायदा है, अब मैं दूसरों के फायदे के लिए क्यों एंगेज करूं, मतलब अपना टाइम वेस्ट करूं। आई एम नॉट गेटिंग। तो वो मेरे को बोलते हैं कभी कभी मेल करके, ये बड़े बड़े प्रोफेसर भी बोलते हैं, oh अनूप, यू नीड टू एंगेज, यू नीड टू टॉक टू अस सो दैट आपका काम पूरी दुनिया में जाना हम्म। जाएगा। मैंने कहा पूरी दुनिया में जहां जहां दलित है, वहां वहां हमारा काम है, पता है सब। और जहां दलित नहीं है, आदिवासी, उनको क्या मतलब है। अभी मैं गोरों को बता के क्या करूंगा कि मैं कितना अच्छा काम करूं। मेरे को नहीं चाहिए डॉलर, मेरे को नहीं कोई चाहिए। मेरे को जो चाहिए वो मेरे को मिल रहा है यहाँ। एंड जितना रिसोर्सेज चाहिए, 10 साल से चल ही रहा है भाई। 10 साल से चल रहा है, 10 साल और चल जाएगा, हो गया काम, है ना। मेरा वो कोई ऐसा प्लान नहीं है कि कुछ सैकड़ों साल तक इंस्टीट्यूशन चलना चाहिए। आई एम वेरी प्रैक्टिकल इन दिस। 10-20 साल चलेगा, उसके बाद इसका भी पतन हो जाएगा। बट एज एन आइडिया इट हैज टू सक्सीड फॉर मी। इनसाइड नालंदा जो है, एज एन इंस्टीट्यूशन इट डजेंट मैटर। 5 साल बाद बंद भी हो जाएगा, मेरे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। बट आई विल बी इंटरेस्टेड इन नोइंग कि हाउ सक्सेसफुल इट हैज बीन एज एन आइडिया। क्या ये बच्चों को, दूसरे लोगों को इंस्पायर कर पाया है ना। कुछ लोग और ये काम सुनकर, क्या लोगों ने इस तरीके से सोचना शुरू किया। अगर आप देखो अनुराग भाई, तो पिछले 5-6-10 साल में हायर एजुकेशन पर बहुत बात होने लगी है। पहले नहीं होती थी, आजकल हर कोई मेंटर बनना चाहता है दलित और आदिवासियों का। हम्म। सब सबका एसओपी चेक करना चाहते हैं। सबको, सारे दलितों को और आदिवासियों को फॉरेन नहीं भेजना चाहते। तो हाउ डेड दिस चेंज हैपन। 10 साल पहले हमको बताते भी नहीं थे कैसे फॉरेन जाना, जीआरई क्या होता है। मेरा एक और बड़ा मजेदार किस्सा है, मैं सुनाता हूँ आपको। हम्म। मैं एमए कर रहा था जेएनयू में, तो हमारे बाजू में एक एक चाट लड़का रहता था, हम्म। हरियाणा से एलिट। 2 साल तक तो वो मस्त रहा, गांजा वांजा सब कूदता था। उसके बाद एमए करने के बाद पता चला वो यूएस में है। हम्म। आई वाज शॉक्ड, यार ये तो दिन भर गांजा पी के पड़ा रहता था, ये यूएस कैसे पहुंच गया, है ना। एंड आई हैड एब्सोल्युटली नो आइडिया कि जीआरई भी कुछ होता है। ये कोई बाद में पता चला कि उनको सब पहले से ही दे नो जीआरई क्या है, पहले से तैयारी चल रही है, सब कुछ पहले से पता है, और हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, तो दैट इज द डिफरेंस। इतना बड़ा अंतर है। तो वो अब यूएस में गांजा भी लीगल है तो उसके लिए परफेक्ट है। नहीं नहीं, अभी तो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत सुधर गया मतलब। नहीं, इज गुड फ्रेंड। चलो। तो ऐसा कुछ नहीं है, बट इट वाज शॉकिंग फॉर मी कि यार इतनी आसानी से कैसे हो जाता है। तो बाद हम्म। में पता चला कि अगर आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन है, आपको कोई गाइड करने वाला है, तो हमारे बच्चे भी कुछ भी कर सकते हैं। अभी नालंदा के 37 बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, मतलब गांव के बच्चे। तो कुछ जादू नहीं, कोई मिराकल नहीं, कुछ ऐसा नहीं है कि कोई च्यवनप्राश गुट्टी को या कुछ गुट्टी पिला दिया कि वो एकदम तो। वो ये है कि सही समय पे सही इंफॉर्मेशन दे दी गई कि भाई ये आईएलटीएस है, ये जीआरई है, 6 महीने ये किताब पढ़ो। ये आप ये ऑनलाइन कुछ ये टेस्ट पेपर्स लगा लो, और ये एसओपी ऐसे लिखना होता है, ये प्रोफेसर का ईमेल है, ईमेल करो, एसओपी में ये लिखना होता है। 10 बार ट्राई करते हैं, 3 बार में निकल जाते हैं। 10 बच्चे भी ट्राई कर रहे हैं तो 3 4 5 निकल गए। जहां 0 निकल रहे थे, जहां एक भी नहीं निकल रहा था, वहां 3 4 बच्चे निकलने लगे। 10 बच्चे ट्राई कर रहे हैं। तो इट्स ऑल अबाउट हैविंग इंफॉर्मेशन, गाइडेंस, नथिंग कुछ एक भी कुछ भी हाँ, नहीं। एक बस वो एक एंड में जाते जाते अगर आप ऐसे कोई एक एक दो तीन ऐसे कोई स्टूडेंट की आपकी कुछ स्टोरी बताएं जो कि बहुत ही एक्सट्रीम मार्जिनलाइज बैकग्राउंड से आते हैं और उन्होंने इस फील्ड के अंदर वो आगे बढ़े। एक जैसे मेरा दोस्त है भट्टा राम, उसको मैं जानता हूँ, राजस्थान के बड़े ही मार्जिनलाइज बैकग्राउंड से आता है शायद वो।
एम्स्टरडेम में है, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो शायद। हाँ, नेदरलैंड में, वो हाँ नेदरलैंड में। नालंदा के थ्रू वो गया था। तो ऐसी कोई स्टोरी जी आप जी। अगर सुनाना चाहे जाते जाते एक बहुत दो सारे स्टूडेंट्स की। बहुत सारे स्टोरीज हैं। एक का हमारी स्टोरी जो है एक बच्चे की, कि मैं जहाँ पे पहले पढ़ाता था, एक छोटी सी जगह मार्केट, वर्धा में, जब नया नया आया था, तो मैं कुछ जिरोक्स कराने के लिए, नोट्स के लिए, जिरोक्स मशीन सामने थी दुकान, वहां पे जाना पड़ता था। तो मैं हर दिन जाके नोट्स बच्चों के लिए जिरोक्स कराना था। तो वहां पे मैं देखता था कि एक लड़की जो है, बच्ची, वो मशीन चलाती है, और जो मालिक है वो बैठा रहता है, और वो मशीन चला के जिरोक्स देती थी। तो वो ऐसे हर दिन जाता था। तो वो एक दिन मेरे से पूछा, सर आप क्या पढ़ाते हो? तो मैंने बोला, बेटा मैं ये 12वीं के बाद के बच्चों को एंट्रेंस एग्जाम ये सब की तैयारी करा। तो मतलब उसके लिए नया था, तो क्या। तो बोली मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। मैंने कहा आ जाओ। तो मैंने पूछा क्या है, तो बोली कि मेरे पेरेंट्स हैं वो सेपरेटेड हैं, एंड आई एम द ओनली वन हु इज अर्निंग, और मेरे दो छोटे भाई बहन हैं, तो कैसे होगा, मुझे तो मैथ भी नहीं आती, मैं तो ड्रॉप आउट हूँ। ठीक है। और मैंने कहा आप आओ तो सही, देखो तो सही। तो वो कुछ दिन नहीं आए, फिर कुछ एक दिन क्लास में देखा मैंने, वो बैठे हुए। ठीक है। तो उसको मतलब, शी वॉज रियली फ्रॉम वेरी पुअर बैकग्राउंड, और उसको बिल्कुल भी मतलब मैथ में, इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम थी, है ना। एंड शी वॉज द ओनली वन हु वाज अर्निंग इन द फैमिली। उसने हिम्मत करके वो जॉब छोड़ा, और वो पढ़ना शुरू हुई, है ना। पढ़ी 1 साल, हम लोगों ने थोड़ा सपोर्ट किया उसको, फाइनेंशियली भी किया। फिर वो अगले साल अपनी छोटी बहन को लेके आई, वो भी पढ़ी। फिर उसके बाद अपने छोटे भाई को लेके आई, तीनों भाई बहन पढ़े। और एक जो है वो खुद टिस में चली गई, अभी शी इज अर्निंग। और जो उसकी छोटी बहन है, वो अभी लंदन में है। शी हैज अभी जस्ट उसने वो एपीयू में उसने ग्रेजुएशन किया था, एंड नाउ शी इज डूइंग हर मास्टर्स फ्रॉम लंदन। और जो छोटा भाई है, वो जस्ट अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में गया है। और ये जो बच्ची है, तीनों लोग बहुत अच्छे पढ़ गए। और ये जो बच्ची है, इसने क्या किया, जैसे ही सैलरी मिलना शुरू हुई, तुरंत ही अपना जो गांव का था, जो जहाँ पे झगड़ा था उसके फादर वादर का, अपनी मदर को, अपने छोटे भाई बहन को लेकर शहर आई, प्लॉट खरीदा और मकान बनवाना शुरू किया। और अभी उसका मकान बन रहा है। तो मेरे लिए हम्म। वो ट्रांसफॉर्मेशन इतना इतना अच्छा लगा, कि एक बच्ची जो एक दुकान में 2-3 हजार रुपए में काम करती थी, जिसका काम सिर्फ जेरोक्स मशीन का है, ठीक है, उसका दोनों छोटे भाई बहन गांव में हैं, कुछ कर रहे हैं, एंड सडनली शी इज अर्निंग 50-60 थाउजेंड आफ्टर टिस। टिस से पास आउट होकर आज वो 50-60 हजार कमा रही है, कब अपना घर बना रही है, अपने मम्मी और छोटे भाई बहनों को पढ़ाया उसने। उसकी छोटी बहन आज लंदन में है। ठीक है। और ये सिर्फ 5 साल पहले नहीं था इस। तो विद इन 5 इयर्स, 6 इयर्स, इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये मेरे लिए मतलब क्या बोलूं मैं, इतना इतना खुशी देता है। और ऐसे तो मतलब ऑलमोस्ट सारे बच्चों की यही कहानी, तो इसमें कुछ भी मतलब ऐसा नहीं कि ये विशेष है या वो विशेष है, सारे बच्चों हम्म। की लगभग यही कहानी है। मेरे पास ऐसी भी स्टूडेंट्स हैं जो, जिनकी मदर देवदासी हैं, हम्म। है ना। ऐसी भी स्टूडेंट्स हैं जो बहुत सारा डोमेस्टिक वायलेंस सह के आई हैं बच्चियां, है ना। बहुत सारा एब्यूजेस रह के आए हैं, एंड समबडी टेल्स देम कि जाओ वहां पे वर्धा में, वहां पे है एक सर जो आपको फ्री में रखते हैं। तो बच्चे आ जाते हैं मेरे पास, और फिर रहती हैं, और दे जस्ट दे गेट टू टॉप यूनिवर्सिटी, और फिर उनका करियर बन जाता है। तो ऐसे तो बहुत सारे बच्चे हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस और इस सब के शिकार हैं। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम, मतलब वेरी वेरी प्राउड ऑफ देम, कि मुझे कुछ भी ऐसा कुछ विशेष नहीं करना पड़ता। देखिए मैं वही बोलना चाहता हूँ, कि कुछ भी विशेष नहीं करना होता है, जस्ट बच्चों पर फेथ करना होता है। कि अब जैसे मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि सर आप ये बच्चों को फ्री में पढ़ाते हो, तो क्या ये पे बैक करते हैं क्या? इनको पे हम्म। बैक करना चाहिए। पे बैक कर, आप क्या बॉन्ड भरवाते हो क्या? मैं बोलता हूँ, मैं क्यों बॉन्ड भरवाऊंगा? मैं क्यों सोचूं कि ये पे बैक करे? मैं पे बैक कर रहा हूँ ना। मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ? मैं ये काम अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ ना। आई एम ट्राइंग टू पे बैक। आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट कि स्टूडेंट पे बैक करेगा या नहीं करेगा। आई जस्ट वॉन्ट टू गिव स्टूडेंट दैट कंड्यूसिव इन्वायरमेंट। ठीक है। तो और वो देना बहुत आसान है, उतना कठिन नहीं है। बस बच्चों पर आपको फेथ करना पड़ता है। जैसे कि मैं, अगर कोई स्टूडेंट मेरे को बोलता है सर मेरे को पैसे चाहिए, ठीक है,
मेरी माँ बीमार है, मेरे पापा बीमार हैं, या मेरे घर से पैसा नहीं आ रहा है, मैं ये नहीं बोलता कि मेरे को अपना पासबुक दिखाओ, मेरे को ये दिखाओ, मैं दे देता हूँ। आई आई टेल देम कि आई हैव फेथ इन यू। ठीक है, मेरे को सुनना ही नहीं है कि मेरे को जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए। अगर मेरे पास नहीं है तो मैं मना कर दूं कि हम्म, नहीं है भाई पैसा नहीं। लेकिन अगर मेरे पास है, आई विल सपोर्ट यू, बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव दैट सेंस कि somebody इज हैविंग फेथ इन। उसमें धोखा भी दे सकते हैं बच्चे, देते भी होंगे, मुझे नहीं मालूम। तो एक दो बच्चे झूठ झूठ भी बोलते होंगे, बट इट्स ओके। आई मीन 100 बच्चों में अगर 98 बच्चे जेन्युइन है, एक दो बच्चे कुछ उल्टा सीधा बोले, तो आई हैव एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। उस फेथ पर क्या होता है, फिर बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। मतलब मेरे यहाँ आप कभी आना नालंदा में, मैं रहूं या ना रहूं क्लास में, सुबह 8 से रात के 8-9 बजे तक बच्चे सिर्फ पढ़ते रहते हैं। इनडिसिप्लिन, लड़ाई झगड़ा बहुत रेयर होता है, क्योंकि बच्चों को समझ में आ जाता है कि यार ये एक मौका है हमारे लिए। और दूसरा, वो देखते हैं ना कि एलुमनाई, अरे हमारे ही गांव से थे, आज यहाँ पे है, लंदन में है, आज ये नेदरलैंड में है। तो फिर वो जो बच्चे आते हैं ना, वो इतने फोकस्ड रहते हैं। तो बस यही है, मतलब एज अ टीचर मेरा रोल यही है कि बच्चों पर फेथ करना। बच्चों को ये लगना चाहिए कि कुछ मेरा अल्टीरियर, कुछ ऐसा मोटिव नहीं है कि मैं वो कल को कुछ उनका यूज करूंगा, वो नहीं लगना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि इट्स एन ऑनेस्ट अटेम्प्ट, एंड इट्स एफर्ट टू बिल्ड कम्युनिटी। और बच्चे पे बैक करते हैं। मेरे को तो आज तक किसी का ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं मिला हो जो उसने बोला हो कि नहीं सर अभी हम निकल गए तो अभी हमसे कोई मतलब है। तो ऐसा तो आज तक मेरे को नहीं मिला। तो वो है ये सब चीजें। तो अ, मेरे लिए बस वही है कि जो चीज हमको कम्युनिटी, समाज ने नहीं दी, समाज ने हमको हमेशा कमजोर माना, है ना, गंदा माना, इंफीरियर माना, मैं मेरे बच्चों को वो नहीं देता। मैं बच्चों को उल्टा, ठीक, तुम सबसे अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम पर मैं पूरा फेथ है, तुम बहुत काबिल हो, तुम कर सकते हो। ठीक है, मैं ठीक उसका उल्टा चलता हूँ, जिसका रिजल्ट मिलता है। हम्म। बस सर, यही है नालंदा और कुछ नहीं। thank you, sir. It was inspiring and also emotional for me, the whole um, discussion. So I don't know. It's an extremely revolutionary work that you are doing, and आपने वो इनिशियली भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि ऐसा भी लोग बोलते हैं कि ये समाज एक साथ नहीं रह सकता या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशनल वर्क नहीं कर सकता, आप उसको भी एकदम मतलब it's very very inspiring that what you are doing, and I really have no words for that. So, and थैंक यू I अनुराग। hope that more and more people pick up this idea in the future, and do something in the same field, because you have proven that it is possible even without any resources, even without any back, large backup from any NGO or any corporate. So thank you so much, sir, for coming to the podcast and sharing your थैंक insights. थैंक थैंक यू अनुराग फॉर Thank you. इनवाइटिंग मी। Thank you. Jai Bhim, sir. अच्छा लगा आपसे बात। जय भीम, जय भीम दोस्त, जय भीम। ठीक sir. So this was today's episode. If you like it, then please don't forget to support it through Buy Me a Coffee wishlist, which is mentioned in the description box. You can also check out links for the Patreon, Instamojo, PayPal, and many other different modes of support. So please do consider it. I'm also mentioning the link for the website of Nalanda Academy. You can check that out and support them as well.